Good morning everyone, esteemed faculty members and my dear friends. A warm welcome to the third day session on development of entrepreneurship opportunities from VLSI Design. I hope the next two previous sessions have been informative and inspiring to you. Without further any delay, let us begin today's session. Professor Preet Jain is an associate professor at Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, with an M.Tech in Microelectronics and VLSI Design from SGSITS. He has industry expertise in VLSI, Embedded System, FPGA and IoT. A 5-time Dronacharya Award recipient, he has mentored students for prestigious competitions like Robocon and Texas Instruments. He has authored over 30 research papers and hold a patent in embedded systems and actively supports institutions across India under the Mighty Chip to Startup program. May I now request our HOD, Dr. Rupesh Dubey sir, to come forward and present the sapling to our distinguished speaker, Professor Preet Jain, as a symbol of token and appreciation. So, I hope I am audible to all, right? From which year you are? Final year, okay. Second year, okay. And third year, right? So, I hope you have gone through the world of LSI. Now, before begin with the actual talk, what we are going to learn is like, I just need to understand what you know and what are the things that you are going to expect in this session, because lots of things has to be covered over here. So before going to proceed to actual session, let me just ask you a few questions regarding what you know exactly and yeah, anybody, क्या क्या आपको पता है? What is VLSI? इंटरेक्ट करिए, जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आप सीखेंगे. व्हाट इज एक्जैक्टली VLSI? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. व्हाट डज दिस मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? या यू कैन टेल मी. मैं तब तक सेटिंग कर रहा हूँ, तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आपको पता है. एंड होप द प्रीवियस सेशंस विल बी fruitful for you and you got some understanding regarding that. Okay. So over here we are going to cover up various things, right? So there are like lots of companies in this domain who are working in the domain of VLSI. Some of them are like fabless companies, some of them are having fabs, some of them are like software based companies and some of them are developing IPs. Okay. तो ऐसे कई सारी कंपनीज हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ समझना चाह रहे हैं, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू जस्ट नीड टू फिल अप द गोल जो आपने यहाँ पर अभी देखा था कि ओवर हियर यू आर थिंकिंग ऑफ अ काइंड ऑफ VLSI बेस्ड डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, सो क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल्स समझना चाह रहे हैं. So today we are going to explore about the tool from Cadence. Okay, have you heard about that earlier? Yes sir. क्या क्या करा है Cadence पर? हाँ, schematic diagram बनाया. Okay, fine. और anybody, ये I hope second year ने बनाया है. आप लोग final year और third year क्या एक्सप्लोर करा है आपने? अभी एक्सप्लोर करा है या नहीं करा है? अभी नहीं करा है, उतना नहीं करा है. सो यू डोंट नो अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस डोमेन, राइट? सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू कवर अप वेरी बेसिक्स से हम चलेंगे और वी विल कवर अप लॉट्स ऑफ थिंग्स. नाउ देयर विल बी 2 सेशंस ऑफ माइन एंड आई विल कवर अप RTL to GDS फ्लो. ओके, एंड RTL to GDS फ्लो क्या होता है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या हैं इसके बारे में समझेंगे. और टूल्स जो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वो कैडेंस का है. एंड इफ़ आई एम गेटिंग इंटरनेट प्रॉपरली देन आई कैन शेयर यू समथिंग. टूल पर कैसे काम करते हैं वो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है.
So let us proceed with RTL to GDS flow. What is RTL? RTL क्या होता है? Registered Transfer Language. Okay, and with the help of that you are able to design your hardware. आप hardware design कर सकते हैं, hardware describe कर सकते हैं, and here what we need is we need some kind of language with the help of we are able to describe the hardware. Now there are few popular languages which we used to have in this domain. One is your Verilog, second one is your VHDL, and third one is your System Verilog. इसके अलावा भी कुछ languages होती हैं which are not so much popular, but they are here. Okay, so which means that you will be having some other languages like Astral, Handle C, System C. Okay, so these are the other languages with the help of which you are able to develop your RTL design. Okay, आप RTL design कर सकते हैं. So here we are going to explore the tool flow with the help of Cadence. So Cadence में क्या क्या चीज़ें होती हैं और Cadence की हेल्प से आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे, राइट. सो Cadence एक तरह का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट, एंड हियर वी आर हैविंग लाइक लॉट्स ऑफ टूल्स. ओके, हर एक टूल को सीखने में कुछ समय लगता है. ओके, क्योंकि यहाँ पर जैसे कंपनी है Cadence या Synopsys या लेट्स से Siemens, so you are having lots of steps involved in this process. complete process में बहुत सारी steps involved होती हैं और हर एक step के लिए आपको एक tool की requirement होती है. और Cadence या Synopsys या Siemens तीनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो सभी tools को provide करती हैं. So here we will first of all understand the methodology through which we are going to know what are the various steps or what are the various methodology that exist with the help of which you are able to design your integrated circuit. Okay, आप VLSI में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या needed होता है, क्या methodologies होती हैं जिनकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं. Okay, so here there are some methodologies which have been listed over here. So first one is your full custom design. Now what does this mean? Full custom design क्या होता है? Any idea? यदि आप नाम को देखेंगे, नाम से देखेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि like full custom design which means that fully customized by our own. Okay, हम खुद कस्टमाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, which means that from the basic circuit theory, okay, सर्किट थ्योरी के नॉलेज से आप लोग सर्किट बिल्डअप करते हैं. सर्किट बिल्डअप करने के बाद आप उसकी सारी प्रोसेस खुद से करते हैं ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो कस्टमाइज रहेगा. ओके, सो फर्स्ट वन इज योर फुल कस्टम डिज़ाइन मेथोडोलॉजी. नाउ इन दिस केस यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन. आप सारी चीज़ें स्क्रैच से कर रहे हैं और सभी चीज़ें खुद अपने हाथों से कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन्स ओवर हियर? क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें अपने हाथों से कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं? सो लाइक इन्होंने कहा कि हमने स्कीमेटिक बेस्ड टूल पे काम करा है. ओके, सो स्कीमेटिक बेस्ड टूल पे काम करा है, विच मीन्स दैट फ्रॉम द स्टार्ट you have to have paper based approach. You are having design specification and design specification के बाद आपको पेपर पर टोपोलॉजी या पेपर पर डिज़ाइन करना होता है और फिर उस डिज़ाइन को आप क्या करते हैं, आप उसको टूल पर लेकर आते हैं, राइट. सो आई विल राइट ओवर हियर सो दैट मैं यहाँ पर ही आपको कुछ समझाते भी जाऊँगा. ओके, सो फुल कस्टम मेथोडोलॉजी. Now just let me ask you one more question. करंट में हम किस टेक्नोलॉजी नोड पे काम कर रहे हैं, या व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी नोड? ये टेक्नोलॉजी नोड होता क्या है? कितने नैनोमीटर पे हम काम कर रहे हैं, राइट. सो करंट में हम कितने नैनोमीटर पे काम कर रहे हैं, एंड ओवर हियर सिंस यू आर अवेयर विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग ओवर हियर, तो आप देखेंगे कि लाइक यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स जो कि अभी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हैं, या फिर आप लेटेस्ट लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, या आप लेटेस्ट गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें एक कॉमन सी चीज़ आती है, वो है आपकी चिप, राइट. और वो जो चिप मैन्युफैक्चर की जाती है उस चिप का एक लाइक मिनिमम साइज़ होता है, या मिनिमम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके मिनिमम साइजेस होते हैं. और ये मिनिमम साइजेस कौन गवर्न करता है? हु इज़ गवर्निंग दिस मिनिमम साइजेस? These are been governed by fabrication companies. Okay, so fabrication companies govern करती हैं कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, right? Because these are the limitation forced by fabrication companies. Now let me just ask you again few things over here.
फैब्रिकेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं जो प्योरली फैब्रिकेशन में है? यस, सही बोल रहे हो? पूरा नाम प्रॉपर बोलो। ओके, सो TSMC, ओके, एनी अदर? सर इन इंडिया चंडीगढ़ में मोहाली में है सेमीकंडक्टर लिमिटेड, SCL, ओके, दे आर वर्किंग ऑन 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, ओके। ये लोग 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे आपको आउटकम देते हैं, आपके चिप प्रोवाइड करते हैं। TSMC यू कैन रिच अप टू 3 नैनोमीटर, आप 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर के नोड्स पर काम कर सकते हैं, राइट। सो ओवर हियर फैब्रिकेशन कंपनीज काफ़ी सारी हैं, ग्लोबली आपको मिल जाएंगी। सो इसमें इशू कहाँ आता है? इशू लाइक दे आर लिमिटेड इन नंबर्स, ओके। सो यूल फाइंड दैट TSMC है, SCL है, देन यू आर हैविंग Global Foundries, then you are having Austria Microsystem, AMS, Europractice, okay. So these are the few companies which produces chips, okay. ये chip manufacturing करती हैं और these are only manufacturing the chips, इनका कोई और दूसरा कोई product नहीं होता, which means that just like if you have heard about or you have experienced PCB design thing, okay, आपने हो सकता है कि अपने 3rd ईयर में या 4th ईयर में PCB डिज़ाइन करा हो, तो PCB डिज़ाइन के लिए हम अपने डिज़ाइन को बाहर भेजते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो यदि आप बाहर से मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो आपको किसी न किसी कंपनी को देना होगा डिज़ाइन को, राइट। सो इन इंडिया यू आर हैविंग एनी PCB कंपनी नेम? PCB पावर, ओके, अहमदाबाद की कंपनी है PCB पावर, शोगिनी पुणे में है, ओके, JL PCB चाइना में है। तो ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो PCB बनाती है, आपके लिए बनाती है, उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। खुद का मतलब खुद के कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जो कि वो मार्केट में दे रहे हैं, राइट। सो आपके डिज़ाइन को मैन्युफैक्चर करके देते हैं। उसी तरह से TSMC, SCL या ग्लोबल फाउंड्रीज या AMS या यूरोप्रैक्टिस, ये किसी न किसी कंपनी के बनाए हुए डिज़ाइंस को बना के देते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। सो ओवर हियर इन केस ऑफ फुल कस्टम डिज़ाइन यू आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन। केवल फैब्रिकेशन को छोड़कर बाकी सारा काम आपको खुद को करना होगा, okay. So here we usually work upon CMOS technology, okay. हम यहाँ पर CMOS टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और अभी हम जब 22 नैनोमीटर के नीचे जाते हैं, ओके, जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको टेक्नोलॉजी लिस्ट करी कि ये 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर पे भी काम हो रहा है, यहाँ पर 180 नैनोमीटर पे काम हो रहा है, तो विच मीन्स दैट ओवर हियर CMOS इज यूजफुल। जब हम TSMC की बात करते हैं 45 नैनोमीटर के बिलो जाते हैं तो उस केस में आपका दूसरी टेक्नोलॉजी आती है जो कि FinFET होता है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बीन यूज्ड बाय द इंडस्ट्री। सो हमारा पर्पस है कि फुल कस्टम डिज़ाइन में काम करना। तो फुल कस्टम डिज़ाइन में काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा कि CMOS में काम कैसे किया जाता है, राइट। सो इन केस ऑफ CMOS टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस आस्पेक्ट ऑफ CMOS, okay. So this can be used for digital design, this can be used for analog design, this can be used for mixed signal design, और this can be used for RF design. So आपके अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं जिसमें आप CMOS को एक्सप्लोर कर सकते हैं या MOSFET को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके अलग अलग डोमेन्स को रियलाइज करने के लिए, ओके। सो होप यू हैव गॉन थ्रू एटलस डिजिटल डिज़ाइन। आपने डिजिटल डिज़ाइन सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सो यू हैव गॉन थ्रू वेरियस थिंग्स लाइक बेसिक गेट्स, ओके। बेसिक गेट से लेकर आपने काउंटर, सिक्वेंशियल सर्किट्स वगैरह सब बनाए होंगे, राइट। सो हियर आई जस्ट नीड टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, विच वन और यू कैन से कौन सी ऐसी आईसी हैं जो कि आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखी हो और वो एक्चुअली डिजिटल डिज़ाइन का पार्ट है? एनी आईसी दैट यू हैव गॉन थ्रू, आपने सुना होगा और ये डिजिटल डिज़ाइन का पार्ट है। सो होप यू हैव गॉन थ्रू आईसी लाइक माइक्रो प्रोसेसर, ओके। आपने अपने स्ट्रीम में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, राइट। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, दिस यू हैव गॉन थ्रू। आई होप दिस वन इज लाइक it is a kind of IC which is very complex in nature and it will be having lots of components which are working in the domain of digital technology, okay. digital domain में काम करता है।
आपका पूरा सर्किट जो है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर का मैक्सिमम पार्ट डिजिटल डोमेन में काम करता है, राइट? क्या करता है, कैसे काम करता है? सो इट्स वर्क अपॉन स्विचिंग एक्टिविटी, स्विचिंग हो रही है और उन स्विचेस की हेल्प से हम रियलाइज करते हैं अलग अलग सर्किटरी को, लाइक वी आर गोइंग टू हैव एडर, वी आर गोइंग टू हैव सबट्रैक्टर, वी आर गोइंग टू हैव मल्टीप्लायर, वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो कम्स इन द पार्ट ऑफ दिस डोमेन. सो जैसे मुझे लेट्स से जो मेरा डेटा है, ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो विच मीन्स दैट ओवर हियर देयर इज वायरलेस कम्युनिकेशन, बट ये वायरलेस कम्युनिकेशन के पहले जो डेटा बना है वो डेटा डिजिटल में बना है, ओके, डिजिटल से रियलाइज हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं ये डिजिटल डोमेन की हैं और कहीं ना कहीं बाद में जाकर एनालॉग डोमेन के कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ पार्ट्स आपके मिक्स सिग्नल डोमेन के आते हैं और कुछ पार्ट आपके आरएफ डोमेन के आते हैं. तो यू आर एबल टू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ CMOS. एंड इन केस ऑफ फुल कस्टम डिज़ाइन एवरी कंपोनेंट विल बी डिज़ाइन बाय यू. आपको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट खुद बनाने होते हैं, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज सेमी कस्टम डिज़ाइन, ओके. So what about semi-custom design? Here what we got is we are going to have third party libraries. हमें third party libraries मिल जाती हैं या हम procure करते हैं from the vendors that some of the components from the library can be part of my design. जैसे मान लीजिए कि let's say I hope you have heard about software में आपने देखा होगा कि लोग पेमेंट गेटवे की बात करते हैं. क्या सभी कंपनी पेमेंट गेटवे क्यों नहीं बनाती है, या कुछ ही कंपनीज जो हैं वो पेमेंट गेटवे बनाती हैं? तो यदि मुझे अपने सिस्टम में पेमेंट गेटवे को इनकॉर्पोरेट करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे उस थर्ड पार्टी वेंडर से बोलना होगा कि मुझे आपका API दे दो, आई कैन यूज़ दैट API फॉर माई डिज़ाइन, माई सिस्टम, ओके. तो सिमिलरली थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में मुझे कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी मतलब लाइब्रेरी बनाते हैं और उनका काम होता है लाइब्रेरी बनाने के बाद उस टेक्नोलॉजी के लिए जो वेरीफाइड कंपोनेंट्स हैं आप उनको डायरेक्टली वेरीफाइड कंपोनेंट को यूज़ कर सको, ओके. सो हियर वी आर गोइंग टू अप्रोच फॉर थर्ड पार्टी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू रिड्यूस योर डिज़ाइन टाइम. आप यहाँ पर डिज़ाइन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू हैव lesser design time. Now we will come to the third one. Third one is your gate level or you can say gate array based approach. ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी कम सुनने में आती है, ओके. Why it is so? Because very less people have seen this thing and working upon this kind of thing. So इसका एक एनालॉजी है. एनालॉजी मैं इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड अपॉन दिस अप्रोच ऑल्सो. गेट लेवल अप्रोच पे भी मैंने काम करा है एंड देर आर स्पेसिफिक फैब इन द वर्ल्ड हु प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ डिटेल्स. हर एक चीज़ों के लिए आपको अलग अलग फैब्रिकेशन वेंडर के पास जाना होता है. तो ऐसी भी कुछ कंपनी हैं जो हमें गेट एरे देती है और गेट एरे बेस्ड अप्रोच से आप डिज़ाइन बना सकते हो. सो इसकी एनालॉजी मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि लेट्स से आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन जनरल PCB, जनरल पर्पस PCB, जीरो PCB. आप सभी लोगों ने जीरो PCB देखा है, राइट. सो जीरो PCB में आपके पास एक यू कैन से फिक्स डिस्टेंस पर होल्स होते हैं, राइट. लेट्स से मैं उसको क्या करता हूँ, फिक्स डिस्टेंस होल्स पर मैं अपने कुछ कंपोनेंट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैं ट्रांजिस्टर माउंट करके दे देता हूँ, ओके. सो ट्रांजिस्टर मैंने एक फिक्स डिस्टेंस पे मैंने माउंट कर दिए. व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग एन अरे ऑफ ट्रांजिस्टर. Now let's say I would like to realize some gate or some functionality. तो मुझे क्या करना होगा, उसमें से कुछ ट्रांजिस्टर चूज करने होंगे और उनकी वायरिंग करनी होगी, ओके. सो ओवर हियर इन द अप्रोच ऑफ गेट अरे द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑलरेडी फिक्स्ड अप बाय द कंपनी. कंपनी ने उनको फिक्स्ड अप कर दिया है और कंपनी ने फिक्स्ड अप करने के बाद क्या करा है, यू आर अलाउड टू यूज वायरिंग. आपको सिर्फ मेटलाइजेशन करना है और मेटलाइजेशन की हेल्प से आप उन जो भी स्पेसिफिकेशन आपको मिले हैं वो आप मीट कर पाते हैं, ओके. सो हियर यू आर गोइंग टू गेट मे बी अरे ऑफ 5000 ट्रांजिस्टर्स और 10,000 ट्रांजिस्टर्स. आपको 10,000 ट्रांजिस्टर या 5,000 ट्रांजिस्टर या 1,000 ट्रांजिस्टर का अरे मिल जाता है और इस अरे के बिहाफ पर आप अपने डिज़ाइन को रियलाइज करते हैं, ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्थ अप्रोच. Fourth approach is
समवॉट डिफरेंट वन, बाकी 3 अप्रोच से डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंट इसलिए हैं कि पहली 3 अप्रोच में आपको क्या करना होता है, पहले आपको डिज़ाइन करना होता है और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फैब्रिकेशन, और फाइनली यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आईसी। आपको इस अप्रोच में डिज़ाइन पहले करना होगा, फैब्रिकेशन बाद में होगा, और फैब्रिकेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आपको रियलाइज होकर मिलेगा वो आपका क्या होगा, आईसी के फॉर्म में होगा। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। सो इस फॉर्म में आपको आईसी मिल जाती है, राइट? वैसे तो आपने आईसी सब देखी है, सो ये अभी रिसेंट में फैब्रिकेट होकर आई है। ओके, सो ओवर हियर यू आर हैविंग फोर्थ अप्रोच एज समवॉट डिफरेंट वन। डिफरेंट किस लिए है? डिफरेंट इस तरह से है कि आपका जो अप्रोच है इसमें आप फैब्रिकेट पहले करते हैं और डिज़ाइन बाद में करते हैं। ओके, फैब्रिकेशन पहले होगा और डिज़ाइन बाद में होगा। नाउ विल इट बी हेल्पफुल? क्या ये हेल्पफुल है? आपने पहले फैब्रिकेट कर दिया और फिर डिज़ाइन कर रहे हैं, और बाकी सब अप्रोच में क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन पहले कर रहे हैं और फैब्रिकेट बाद में कर रहे हैं। फाइनली व्हाट इज़ योर एम? आवर एम इज़ टू हैव अ आईसी, हमारा खुद का ऐसा कंपोनेंट जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो और हमारी फंक्शनलिटी के लिए बनाओ, राइट? या हमने बनाया है फंक्शनलिटी, उसकी फंक्शनलिटी हमने डिफाइन करी है। सो व्हाट डज दिस मीन? हियर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन टू अचीव दैट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फैब्रिकेट इट। हम फैब्रिकेट करवा रहे हैं, यहाँ पर पहले से फैब्रिकेटेड है और हम अब क्या कर रहे हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो दिस अप्रोच इज़ लाइक अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इस अप्रोच से आपका डिज़ाइन टाइम रिड्यूस हो जाता है, आपका आईसी का मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज फैब्रिकेशन करते हैं तो फैब्रिकेशन करने के लिए आपको कितना समय लगता है? हाउ मच यू एक्सपेक्ट कि आज मैंने डिज़ाइन सबमिट करा, व्हाट टाइम इट विल टेक टू गेट इट फैब्रिकेटेड? कितना समय लगेगा? 3 to 4 months। सो 3 to 4 months की साइकिल होती है, तब जाकर आपका फैब्रिकेट हो पाता है, और वो भी तब हो पाएगा जब उसका साइकिल चल रहा होगा। यदि उसका साइकिल मान लीजिए आज मैं सबमिट करता हूं और उसका साइकिल मान लीजिए दिसंबर में आने वाला है, तो दिसंबर तक तो वैसे ही वेट करना है, और दिसंबर के बाद फिर से 2 से 3 महीने। तो इस तरह से आपका जो फैब्रिकेशन होता है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, and this is the kind of approach with the help of which you are able to realize your design at very fast rate। बहुत फास्ट, एक्सट्रीम फास्ट बोल सकता हूँ मैं। एक्सट्रीम फास्ट इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे फैब्रिकेट नहीं करना है। यहाँ पर जो फैब्रिकेट करने का समय है वो आपका खत्म हो चुका है, आपको क्या करना है, केवल डिज़ाइन पे फोकस करना है। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट अप्रोच, फोर्थ अप्रोच, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू डिज़ाइन योर इंटीग्रेटेड सर्किट। आप कह सकते हैं कि आपने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन फैब्रिकेशन? फैब्रिकेशन में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? सो वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेस अ लैंड, यू आर गोइंग टू पे इट अप। ओके, सो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो डिज़ाइन आपका साइज होता है वो 1 mm स्क्वायर या 2 mm स्क्वायर या 3 mm स्क्वायर या 4 mm 5 mm स्क्वायर का होता है। मतलब आपका जो एक्चुअल आईसी है, जैसे आपने अभी मैंने आपको आईसी दिखाया, वो आपको दिख रहा होगा कि लगभग 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, बट दैट इज़ द फाइनल पैकेज। बट उसके अंदर जो चिप का एरिया है वो चिप का एरिया हार्डली 1 mm स्क्वायर का है। ओके, और उस 1 mm के स्क्वायर के अंदर आपका एक्चुअल डिज़ाइन बनेगा। ओके, दिस डिपेंड्स अपॉन डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी ऑन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट यू आर गोइंग टू हैव ऑन द चिप। यदि चिप में आपके डिज़ाइन में ज़्यादा ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर हैविंग मोर देन 1 लाख ट्रांजिस्टर एंड इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई area less than 1 mm square, then you can go for 1 mm by 1 mm। बट यदि आपका और भी ज़्यादा लग रहा है तो उस केस में आपको हायर साइज लेना होगा। ओके, सो इन केस ऑफ योर डिज़ाइन फैब्रिकेशन, द अदर थिंग दैट यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन इज कॉस्ट। सो पहली चीज़ है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरी चीज़ है आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। कितना कॉस्टिंग होता है रफली? Any idea? Any cases? पूरी प्रोसेस का मैक्सिमम? नहीं, पूरी प्रोसेस का नहीं, फैब्रिकेशन का, केवल फैब्रिकेशन का।
सो आप मान के चलिए कि ये फैब्रिकेशन की कॉस्ट जो होती है ये टेक्नोलॉजी नोड पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी नोड प्रेफर कर रहे हैं. सो से फॉर एग्जांपल मैं 180 नैनोमीटर की बात करता हूं तो रफली आई एज अ एकेडमिक इंस्टीट्यूट विल हैव टू पे नियर अबाउट 10 लाख रुपीज़. ओके, इनिशियल लेवल पर मुझे 10 लाख रुपीज़ पे करना होता है. ओके, और उससे कितनी आईसीज बन के आएगी? लगभग 30 से 40 चिप्स, 30 से 40 चिप आपको मिलती हैं. ओके, सो ओवर हियर फैब्रिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. और उसके बाद यदि मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही कॉस्ट होता है 30 से 40 लाख रुपीज़. और ये किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं? 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ. यदि मैं वहीं 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर की बात करूँगा तो उसकी कॉस्ट मल्टीपल फोल्ड्स होंगी. ओके, बहुत ज़्यादा होगी. राइट, सो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो टाइम और दूसरे कॉस्ट इन्वॉल्व. व्हाट अबाउट दिस? फैब्रिकेट पहले हो गया और डिज़ाइन बाद में कर रहे हैं, तो इस केस में क्या अभी भी मुझे उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है? एनीथिंग, एनी केसेस? नो, ओवर हियर आई डोंट नीड टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज यहाँ पर इस चिप का मास प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पर मैं पहली बार बना रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट उतनी पे करना पड़ रही है. बट यहाँ पर एक बार वेरीफाई हो कि मास प्रोडक्शन होने लग गया तो उसके बाद इसकी कॉस्ट उतनी नहीं होती. ओके, सो यूजुअली द कॉस्ट ओवर हियर दैट इज बीन इन्वॉल्व इज रफली 500 रुपीज़ से लेकर 50 लाख रुपीज़. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी. यहाँ पर मैं डेंसिटी इन्वॉल्व करूँगा बिकॉज जब आप फैब्रिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपका 1 mm² का जो कॉस्टिंग है वो इतना बैठता है. परंतु जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर भी डेंसिटी आती है. सो डेंसिटी कम्स इन द पिक्चर. सो आपका जो डिवाइस है वो 500 रुपीज़ से चालू होकर 50 लाख रुपीज़ तक का भी हो सकता है. ओके, 50 लाख में जो डिवाइस आएगा उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि यू कैन थिंक मतलब यू कैन इमेजिन कि काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं. ओके, सो नाउ टू डिस्क्लोज दिस थिंग, any cases that which kind of IC I am talking about in the fourth approach? कोई केसेस हैं आपके, या आपने कभी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना हो जिसमें फैब्रिकेशन पहले हो जाता है और डिज़ाइन बाद में होती हैं? एनी केसेस? ओके, सो दिस वन इज योर FPGA बेस्ड डिज़ाइन और CPLD बेस्ड डिज़ाइन. इसमें आप डिज़ाइन पहले करते हैं, सॉरी फैब्रिकेशन पहले मिल जाती है आपको, आईसी पहले मिल जाती है और आपका डिज़ाइन बाद में होता है. ओके, फैब्रिकेटेड आईसी आपको पहले मिल रही है और डिज़ाइन बाद में आप कर रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस मैथोलॉजी. इस मैथोलॉजी का एक और एडवांटेज है. क्या एडवांटेज हो सकता है? एनी केसेस? यदि मैं इनके साथ कंपेयर करता हूँ इसको तो क्या एडवांटेज और मिलता है मुझे? एनी केसेस? Any case that you can think of? हाँ, कस्टमाइज तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है. वो तो यहाँ पर भी कर रहे थे कस्टमाइज. और क्या एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैंने अभी बातों बातों में आपको कुछ बताया भी, हिंट भी दिए, परंतु आपको उस पर फाइनली एक जो क्लू है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करके बताना है. कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो ओवर हियर कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है. पर कॉस्ट कैसा? रेकरिंग कॉस्ट या फिर हाँ क्या, कौन सा कॉस्ट रिड्यूस होगा? सो ओवर हियर आप इस आईसी को मान लीजिए यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद जब फैब्रिकेट होकर आया और बग आ गया, व्हाट यू कैन डू? फिर से पूरा अप्रोच फिर से करना पड़ेगा और फिर से वही वेटिंग टाइम, फिर से वही कॉस्ट फिर से पे करनी होगी. ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई माइनर से चेंज करा और वहाँ पर अपडेट करने के बाद उन्होंने उतने चार्जेस नहीं लिए. आपको सेम चार्जेस दोबारा से पे करने होंगे. बट ओवर हियर यहाँ पर पे नहीं करना है क्योंकि आपकी आईसी मोर देन 1 लाख टाइम्स रीप्रोग्रामेबल होती है. आप रिकन्फिगर कर सकते हो इस आईसी को लगभग 1 लाख बार. 1 लाख बार करेंगे तो यहाँ तो बड़ा इशू है. 1 लाख बार तो मैं कंपनी ही नहीं सस्टेन कर पाएगी. 1 लाख क्या, इवन 10 बार मैंने यहाँ पर करवा लिया तो कंपनी बोलेगी कि कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती. राइट, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट
कि जब एज अ एंटरप्रेन्योर आप जब बनते हैं इस फील्ड में तो आपको क्या चीज़ चूज करना चाहिए, राइट? सो इनिशियली यू हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोच सो दैट जब कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद आप इधर जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ? इन दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन है और वो कॉमन थिंग है आपकी RTL. द कॉमन पॉइंट ओवर देयर विद दिस अप्रोच एंड दिस अप्रोच इज RTL. तो आप यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड डिज़ाइन करते हैं. आप FPGA पे करेंगे या फिर आप ASIC के लिए बनाएंगे, वो आपका जो डिज़ाइन होगा वो लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच से होगा. ये दोनों में कॉमन है. यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर लेवल पे काम करते हैं, यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर लेवल पे काम नहीं करते हैं. ओके, यू आर नॉट वर्किंग ऑन ट्रांजिस्टर लेवल, बट ओवर हियर यू आर वर्किंग ऑन ट्रांजिस्टर लेवल. ओके, सो कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है आप लोगों की अभी तक में? एनी क्वेरीज? अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई जस्ट नीड टू टेल यू, बट क्वेरीज एक बार देख लेते हैं. तो कोई क्वेरीज है आप लोगों की? किसी भी तरह का कोई डाउट हो? फैब्रिकेट हो गया, उसके बाद आप सिर्फ डीबग करके टेस्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है उसमें कोई बग तो नहीं है, आपके स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. फैब्रिकेट पर करेक्ट नहीं कर सकते. फैब्रिकेट कैसे कर सकते हैं? डिज़ाइन तो पहले बनती है जनरली, स्कीमेटिक. राइट, डिज़ाइन पहले बनती है. सो ये ऐसी चिप है जो डिज़ाइन ऑलरेडी बनी हुई है, आपको सिर्फ उसको कन्फिगर करना है आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग. इसलिए ये फ्लेक्सिबल है और पावरफुल है. पावरफुल इन द सेंस बिकॉज कि आप उसको रिकन्फिगर मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. आप यहाँ पर रिकन्फिगर नहीं कर सकते, यहाँ पर तो आपको फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट? गलती होने पर. ओके, एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन?